ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਅਪਰੋਚਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਿਆ ਮੀਨ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰਮਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਫਰਮਸ ਆ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਮੀਨ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਗਰੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ। ਇਨਪੁਟ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ, ਮਿਨਰਲ ਬੇਸਡ, ਮਿਰਾਈਨ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ RBI ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 32 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 10 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਇਨਟੂ ਦਾ 90 ਗਰੁੱਪ। ਮੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ? 4 ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਨੋਰਮਲੀ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਔਰ ਗਰੋਥ ਇਨ ਦ ਅਰਨਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਨਸ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਲੋਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਵੈਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਰਿਵੈਨਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵਿਚ ਹੈਵ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਗਰੋਥ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ठीक है, कहते आर दोज विच आर इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय द टेक्निकल एंड इकनॉमिक चेंजेस। ठीक है, मीन इकनॉमिक चेंजेस के कारण, टैक्नीकल के कारण, ठीक है, जो प्रभाव होंगे दोनों का, ठीक है, कॉम्बीनेशन है ग्रोथ एंड साइक्लिकल का। नैक्सट है इंडस्ट्री ग्रुप्स। इंडस्ट्री के ग्रुप्स आ जिमें कि स्मॉल स्केल यूनिट्स आ, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ आ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, स्मॉल स्केल के किहड़े आते जिन्हों की मीडियम पेड अप कैपिटल कितनी होंगी है 30 लाख। ठीक है, एंड लिस्टड ऑन द OTCI। OTCI मीन ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, नैक्सट है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ किहड़ियां आंदियां जिन्हों की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 करोड़। ठीक है, लिस्टड ऑन द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टड होंगे लाइक कोचीन एंड कोयम्बटूर। ठीक है, नैक्सट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये किहड़ी होंदी पेड अप कैपिटल इन्हां दी कितनी होंदी है 10 करोड़ एंड लिस्टड ऑन द BSE एंड NSE। BSE किहड़े होंदे ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE इज़ द नैशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हां विच लिस्टड होंदे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंदियां ने, मीडियम स्केल एंड द स्मॉल स्केल। नैक्सट है इनपुट बेस्ड क्लासीफिकेशन। इनपुट बेस के किहड़े होंदे आ, ठीक है, मीन इनपुट बेस होंदे मीन जो असीं उन्हां च कुछ है ना उगाते हैं, ठीक है, उस सानू लिटरली उस तो सानू कुछ मिलता है जिवें आउटपुट मिलती। मीन एग्रो बेस्ड होंदे, एग्रो किहड़े होंदे जो एग्रीकल्चर ना होंदे, कहते दिस इंडस्ट्री यूज द प्लांट्स एंड द एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटीरियल। ठीक है, एक किस चीज़ में अपने एज ए रॉ मटीरियल यूज़ करते हैं, जो भी प्लांट्स ने, एनिमल्स है, ठीक है, उन्होंने तो की प्रोड्यूस करते हैं फूड प्रोसैसिंग। ठीक है, भोजन बनाते जिवें हुण प्लांट्स तो सानू फूड मिलता है। ठीक है, वैजीटेबल ऑयल्स हो गया, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द लैदर इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ किहड़ी होंदी ने, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन द माइनिंग एंड द यूज मिनरल ऑयल। ठीक है, जो माइनिंग तो बेस्ड होंदी है ना, मिनरल्स बेस्ड के विच आ जाती है। ये किहड़ी आती है हैवी मशीनरी एंड द बिल्डिंग मटीरियल। नैक्सट है मेराइन बेस्ड जो समुद्री जहाज होंगे, मीन वो यूज़ करते हैं रॉ मटीरियल फ्रॉम द सी और द ओशन। ठीक है, सी और ओशन तो यूज़ करते जिमें कि फिश ऑयल बनादियां ने। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड किहड़े होंगे जो जंगल चो, ठीक है, रॉ मटीरियल यूज़ करते जिमें फॉरेस्ट चो किवें यूज़ करते वुड यूज़ करते। वुड काहदे लई यूज़ करते पेपर और फर्नीचर नूं बनाउण दे लई। नैक्सट है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। ठीक है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल देखो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ 4 ਮੇਨ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਸਟੇਜ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਕੇ ਐਂਡ ਦ ਡਿਕਲਾइन ਸਟੇਜ। ठीक है, 4 स्टेजेस ने जिहदे हर एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने फेस करनिया पैंदियां ने। जिवें फर्स्ट है, ठीक है, जिवें कि इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन नूं असीं पायनियरिंग स्टेज भी बोल दिंदे हां। ठीक है, ये क्या होंदा कि जो असीं एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं, मीन मार्केट क्या एक तरह नवा प्रोडक्ट है, जो असीं एक कंपनी इंट्रोड्यूस होंदी है तो नवा प्रोडक्ट लेके आती है, वो चीज़ होंदी है। ठीक है, उस टाइम क्या होंदा कंपीटीशन भी इंक्रीजिंग रेट पर होंदा जो स्टार्टिंग इंडस्ट्री आती है। ठीक है, मार्केट दे विच नवी इनोवेशनस होंदियां ने। ठीक है, न्यू इनोवेशनस लेके आती है। ठीक है, प्रोडक्शनस भी इस टाइम पर की होंदी है, इनक्रीज़ होंदी है। ठीक है, डिमांड भी प्रोडक्ट की इनक्रीज़ होंदी है कि न्यू प्रोडक्ट आया होंदा, हर कोई चाहता है ना कि उस चीज़ को असीं खरीदीए। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ हर कोई साड़ी प्रोडक्ट ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ, डिमांड इनक्रीज़ होंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ प्रॉफिट्स भी इनक्रीज़ होंदे आ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या होंदा मीन प्राइजेस की स्टेबिलिटी होंदी है। ठीक है, नैक्सट है ग्रोथ स्टेज, जिन्हें असीं एक्सपेंशन स्टेज भी कह दिंदे आ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या कहते इस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या होंदा कंटीन्यूसली ग्रोथ होंदी आ। ठीक है, इस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ रेट ऑफ ग्रोथ है वो की होंदा मीनस घट होंदा फर्स्ट स्टेज नालों, बट जी प्राइजेस की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होंदी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज नालों। ठीक है, नैक्सट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की होंदा पीरीयड, मैच्योरिटी पीरीयड होंदा जिन्हों किसी ये ना जी एज जो हम देखो सिर्फ स्टार्टिंग तो शुरू होए ना, मीन ये ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा सी, ये थोड़ी, ठीक है, घट, मीन मैच्योरिटी आने जो स्टेबिलिटी आ जाती है एक तरह ना। ठीक है, मीन पीरीयड होंदा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का।
शेक आउट हो जाता है एक तरह पीरियड, ग्रोथ की होंगी है स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। इस विच हर फर्म अपने आप ही इस्टैबलिश करी जाती है, ठीक है, अपने ही उन्होंने ऑब्जैक्टिव डिवेलप होंगे आ, ठीक है, जी उनकी फाइनैशियल पोजीशन है, ठीक है, कंपनी को कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, वो स्टेबल रही है, ठीक है। मीने एज़ कंपेयर टू मीन मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है जो कंपनी खुद के बिहाफ से ही, ठीक है, सब कुछ हैंडल करती है। नैक्सट इज़ द डिक्लाइन स्टेज, मीन जो तो इंट्रोडक्शन तो स्टार्टिंग हुआ है, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है डिक्लाइन स्टेज डिक्लाइन होंगे कि इस स्टेज दस दी है कि जी इंडस्ट्री है, ठीक है, इस स्टेज जी इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो बंद हो जाती है, मीन घटनी शुरू हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है, बंद हो जाती है। ग्रोथ बिगिनस टू मॉडरेट, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं है, आउटपुट है वो भी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, प्रॉफिट्स भी घट जाते हैं, ठीक है, सब कुछ मीन एंड से जाके जिमें फर्स्ट स्टेज तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है लास्ट स्टेज कि जिथे ग्रोथ होंगी है, प्रोडक्शन हाई होंगी है, प्रोडक्शन घट जाती है, ग्रोथ घट जाती है, ठीक है। ये हो गया इंडस्ट्री लाइफ साइकिल जो, ठीक है, एक लाइफ साइकिल ज़्यादा पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, फिर तो इंट्रोडक्शन तो ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज एनालिसिस, ठीक है, किहड़े फैक्टर जो इंडस्ट्री से अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, ये है कि मीन किस टाइप की प्रोडक्शन इंडस्ट्री में की जाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी का एनालिसिस होना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू करैक्टर एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इंडस्ट्री की डिमांड ही कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। नैक्सट डिमांड इन द मार्केट, जिमें करैक्टर के आ गया जिमें सीजनल सीगा, ठीक है, जिमें कि हम सीजन के अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ विकती है ना, विंटर के विंटर क्लॉथ्स विकणगे, ठीक है, और जो असी देखिए समर आ तो समर के, ठीक है, वही कॉटन के क्लॉथ्स विकणगे उस अकॉर्डिंग ही, ठीक है, वो डिमांड में कैलकुलेट किया जाता है। डिमांड इन द मार्केट कहते एक इंडस्ट्री जी है प्रॉफिटेबल उदों ही हो सकती है, देखो जो जी डिमांड है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, मतलब कि हम देखो जे हम साड़ी कोई भी कुछ प्रोडक्ट होंगे हैं, ठीक है, जिमें हम ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जो असं मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी डिमांड गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, तो जो मीन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो जी उन्होंने जी ग्रोथ है एज़ कंपेयर टू अदर की होनी चाहिए ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, जिन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अगर वो गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर रही है तो उहदे लिए असीं मैनूं वध प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन उन्होंने ज़्यादा बेच सकते हैं, ठीक है, जिहदी डिमांड ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि उन्होंने इन्ना ही बेचना है, ठीक है, और उहदे ते की हुंदा इफैक्ट पैंदा है, ठीक है, उहदी मीन उहदे ते सानूं ज़्यादा बेनीफिट नहीं होंदा। नैक्सट है प्रोडक्ट लाइन एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के विच आही सारी स्टेजेस आ जांदियां ने, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड द डिक्लाइन स्टेज। नैक्सट है गवर्नमेंट पॉलिसी, इस चैक करना कि गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फेवर में है या नहीं है जो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इंडस्ट्री के मेन एम के अकॉर्डिंग जी गवर्नमेंट पॉलिसी है बनाई गई है या नहीं बनाई गई, ठीक है, तो जो एम है जो इंडस्ट्री का वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। नैक्सट है लेबर एंड द अदर इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम, देखो एक इंडस्ट्री के की होंगे है लेबर यूज़ किए जाते हैं, तो लेबर जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे हैं, समझ लो वो किसी इंडस्ट्री में लेबर प्रॉब्लम है, मतलब सानू पता है कि प्रोडक्शन लिए लेबर बहुत जरूरी है, लेकिन क्या है कि अज सानू लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरी हो रही है, मतलब साड़ी प्रोडक्शन ही नहीं ठीक तरह होनी, ठीक है, जो प्रोडक्शन नहीं हो रही ठीक तरह मीनस अगे भी सानू काफ़ी प्रॉब्लम्स आउणगियां, ठीक है, इन दैट केस इंडस्ट्रीज़ नू नैगलैक्ट करना चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ बेनीफिशियल नहीं होंदियां क्योंकि इन्हां कंपनी दे पैसा लाने का सानू कोई बेनीफिट नहीं होंदा, ठीक है। नैक्सट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होंदा कि किवें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक इंडस्ट्री है वो वेल प्लान है या नहीं है, मीन ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करी जा रही है जो नहीं करी जा रही है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही है, वो भी साडी इंडस्ट्री ते इफेक्ट करती है।